بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ تقریب میں مراد علی شاہ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت، سابق وزراء اور سینئر بیوروکریٹس بھی تقریب میں شریک۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ گورنر ہاؤس کے سبزہ پر منعقدہ پروقار تقریب حلبرداری میں سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سابقہ سندھ کابینہ کے ارکان، سفارتکاروں، جج صاحبان، افسر شاہی اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے تقریب کی کارروائی چلائی۔ تلاوت کلام پاک سے تقریب حلف برداری کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس مقبول باقر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ تقریب حلف برداری میں پیپلز پارٹی، MKM، GDA اور دیگر جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ شہر کے معروف بزنس مین اور سماجی شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور تقریب میں شریک شخصیات نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کون ہیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس مقبول باقر 5 اپریل 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے LLB کیا اور مئی 1981 میں وکالت سے منسلک ہوئے۔ 26 اگست 2002 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہو گئے اور پھر سال 2013 میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سال 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ 26 جون 2013 کو کراچی میں ہائی کورٹ روڈ پر ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ان پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ حملے میں رینجرز اور پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سپریم کورٹ میں بے باک فیصلوں کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار سپریم کورٹ کے معتبر ججز میں ہوتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کی حیثیت سے 4 اپریل 22 کو ریٹائر ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سبکدوش ہو گئے۔ مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سندھ میں نگراں کابینہ کے لیے سیاسی جماعتوں کی بھاگ دوڑ۔ سندھ کی نگراں کابینہ 10 سے 12 وزراء پر مشتمل ہوگی۔ سابق چیف سیکرٹری سندھ محمد صدیق میمن کو نگراں کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ محمد صدیق میمن کو 3 محکمے الاٹ کرنے پر غور، ترقی و منصوبہ بندی، خزانہ اور سرمایہ کاری شامل۔ محمد صدیق میمن کو دفتر الاٹ کرنے کے بھی احکامات مل گئے۔ پیپلز پارٹی 6 اہم وزارتیں لینے کے لیے کوشاں۔ MKM کی بلدیات، صنعت اور تعلیم کی وزارت حاصل کرنے کی کوشش۔ GDA نے وزارت داخلہ کے لیے نام پیش کر دیا۔ صوبائی کابینہ میں 2 تاجر بھی شامل کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق 2 سے 3 روز میں نگراں کابینہ کا اعلان ہوگا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے جاتے ہی کرپشن کی فائلیں کھل گئیں۔ FIA ہیڈ آفس نے تمام زونل دفاتر کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایات کر دیں۔ FIA ہیڈ کوارٹر کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق سکھر حیدرآباد موٹر وے میں 32 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئیں۔ FIA کے مطابق سندھ حکومت اور سرکاری افسران کرپشن میں ملوث ہیں۔ جولائی 2022 کے میں دیے گئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہونے والے راشن بیگز کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ FIA ہیڈ آفس نے زونل دفاتر کو 18 عام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ میئر کراچی نے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کا جواز پیش کر دیا۔ کہا گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، نشئی نکال کر لے جاتے ہیں، کھمبے بھی نکال کر لے گئے۔ ملیر میں جو واقعہ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بڑا بدقسمت واقعہ ہوا، بچہ گٹر میں گر گیا۔ آپ مجھے بتائیے، ہم سب بال بچے والے لوگ ہیں، کیا ہم لوگ خود گٹر کے ڈھکن چراتے ہیں؟ کیا ہم خود گٹر کے ڈھکن غائب کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر ایسے الزام لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوتے ہیں کہ واپس گٹر کے ڈھکن خریدے جائیں گے تاکہ ہم پیسے کما سکیں۔
किसी की माँ का बच्चा उसे बिछड़ गया, क्या नजमी आलम ये चाहेगा, मुर्तज़ा वहाब ये चाहेगा? हम नहीं चाहेंगे। कोई ज़ी शऊर ऑपोजिशन की जमात वाला भी ये नहीं चाहेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है ना कि आप गटर के ढक्कन लगाते हैं, वो हीरोइनची आता है उठा के ले जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी है। आप शहर की जिस जगह जाएंगे वहाँ पे पाउडरी खड़े हुए वो सरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम शहरी वीडियो बनाते हैं और कोई फेसबुक पे डालता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुपों पे डालता है, कोई ट्विटर पे डालता है। भाई कोई 15 कॉल कर लो, कोई खुद उसको रोक लो यार कि ये ना करो। लेकिन ऐसा नहीं होता वो, और इसलिए नहीं होता, सरिया निकाल के ले गए जी। तो हम तो नहीं कर रहे ये, आप भी नहीं चाहेंगे ये, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो मायूसी हो गई है ना कि हमने गिव अप कर दिया है। सानू की यार, सानू की यार, खाना छोड़ो यार। शाह गाजी का मज़ार है, वहाँ पे 25-30 हज़ार लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। ये ज़ाहिरीन जितने आते हैं उस जगह पे, मेरे ख्याल में किसी जगह पे नहीं आते होंगे। ये उसके बावजूद सरिया निकाल के ले गए। वो बल्दिया टाउन पे एक जगह पे मैं गया, वहाँ पे खंबे निकाल के ले गए। अभी हमने PIDC का ब्रिज ठीक किया, उसकी लाइट पहले निकाली, लाइट के बाद खंबे निकाल के ले गए। करें तो क्या करें? बुनियादी वजह यह कि शायद हम सब ने गिव अप कर दिया। शहरी हुकूमत ने गटर के ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री बना ली। वाटर कॉरपोरेशन गटर के ढक्कन खुद बनाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फैक्ट्री में यौमिया 300 और माहाना 9000 गटर के ढक्कन बनाए जाएंगे। चोरी से बचाने के लिए गटर के ढक्कन का वजन 35 किलो रखा गया है। कुल शहर की तमाम यूसेस को फी यूसी 75 ढक्कन फराहम किए जाएंगे। गटर के ढक्कन की चोरी रोकने और उनकी निगरानी के सिलसिले में म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर तैनात होंगे। हमने पहला फैसला ये किया कि वाटर बोर्ड गटर के ढक्कन खुद बनाएगा, और हमने COD पे इसका प्लांट लगाया, काम शुरू किया। उस प्लांट की कैपेसिटी है डेली 300 से 400 ढक्कन, और तकरीबन कोई डेली 100 रिंग्स बनाने की कैपेसिटी है उसकी। उसने काम शुरू कर दिया था। 3500 ढक्कन हमने तैयार कर लिए, और कल, और ये सबूत है पीपल्स पार्टी में और दूसरों में, कल मैंने कराची के तमाम UC चेयरमैन को, जिसमें जमात इस्लामी वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, JUI वाले भी हैं, और TLP वाले भी हैं, और मेरे पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, उन तमाम 246 नुमाइंदों को COD पर मदऊ किया सुबह। और हर UC के लिए 75 ढकने हम हैंड ओवर करेंगे, ताकि कोई UC ये शिकायत ना करे कि हमारे पास ये ढकने अवेलेबल नहीं है। और उसमें आसानी हमें ये हुई कि वो 35 किलो वजनी हमने ढक्कन बनाया है, तो यूजुअली चोरी होने में शायद दिक्कत होगी, एक शायद। मैं इसलिए इस बात को, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं क्यों वाटर बोर्ड के ज़रिए इसको नहीं लगा रहा, कि सबसे बड़ा स्टेक जो है ना इलाका मकीनों के साथ वहाँ के UC चेयरमैनों का है, काउंसलर्स का है। हम उनको हैंड ओवर करेंगे कि जी आपका ये मसला था, ये आप लगाएं, और फिर बैठ के ये मेक श्योर करें कि वो चोरी ना हो। रेलवे कॉलोनी में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ मकीनों की जानिब से शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गए। सादत हुसैन रिपोर्ट के साथ। रेलवे कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर मकीन बिफर गए। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाजी मुजाहिरा, ट्रैफिक भी रोक दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री और अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम हो गया। मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और शिकवा किया कि बगैर किसी नोटिस के घर मिसमार किए जा रहे हैं। 60-70 साल हो गए यहीं पे रहते हुए, बच्चे कामों पे गए, आके तोड़ फोड़ इतनी, खाना पीना कुछ नहीं है, न गैस न बत्ती, हम कहाँ जाएंगे। हमें बगैर बतलाए आए और सारी दुकानें तोड़ दी, और अब घर भी तोड़ दिए आज हमारे। हम बच्चे स्कूल गए हुए हैं, स्कूल से आए तो सारे घर टूटे हुए हैं हमारे। हम गोसिन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि तोड़ फोड़ रेलवे कॉलोनी की बंद की जाए और रेलवे का DS को मुअत्तल किया जाए। पुलिस से मुज़ाकरात और यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और सड़क खोल दी गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वजारत रेलवे से अपील की कि कई सालों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, हुकूमत घरों को मस्मार करने के बजाय मसाइल हल करे। कैमरामैन मोहम्मद वाहिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने निगरां हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। बोले हुकूमत ने आते ही शहरियों पर महंगाई का बम गिरा दिया। हाफिज नईम बोले कल से बाकायदा पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे। ताहा मलिक रिपोर्ट के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी फिर मैदान में आ गई। कल से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने निगरां हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। बोले आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। क्यों इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट करके अपने इस्तेमाल में ली हुई हैं? इस पूरे तबके ने ये क्यों नहीं 1000 सीसी और 1300 सीसी मैक्सिमम में जा सकते? ये कोई कहां से उतरे हुए लोग हैं जो छोटी गाड़ी में नहीं बैठ सकते? लेकिन ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहेंगे और इस पूरे पेट्रोल को जो फ्री इस्तेमाल करेंगे ये हमारे ऊपर इसको मुसल्लत करेंगे। इसलिए हम किसी भी सूरत में इस इजाफे को कबूल नहीं कर सकते, हम इसे मुस्तरद करते हैं। इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान ने मुल्क की हालत पर भी तशवीश का इजहार किया। कहते हैं आवाम में मायूसी बढ़ रही है, नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जब आप लोगों को बिल्कुल तबाह कर दोगे तो फिर तुम्हारे गले में आएंगे ये लोग। बिफर गए ना एक मरतबा आवाम, तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अभी मायूस कर दिया है तुमने लोगों को, तो लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, मायूस हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कब तक होगा ये सिलसिला? 25 करोड़ लोग इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि मुल्क में लूट मार का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा और हुक्मरानों को अपने अखराजात कम करके आवाम के लिए सोचना होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ ताहा मलिक, कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली कंवर नवीद जमील कराची में इंतकाल कर गए। ब्रेन हेमरेज का शिकार साबिक रुकन कौमी असम्बली कई माह से कोमा में थे और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 1:30 बजे मुस्तफ़ा मस्जिद DHA फ़ेज़ 1 में अदा की जाएगी। तदफीन DHA फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। MKM का इजहार ताज़ियत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कंवर नवीद जमील के इंतकाल से तहरीक एक सीनियर और मुखलिस ज़िम्मेदार से महरूम हो गई। इसको दोबारा नैब भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। क्लिफ्टन में सरकारी इराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस। मुस्तफ़ा कमाल को अदालत से रिलीफ मिल गया। रहनुमा MQM पाकिस्तान अनीस कायम खानी के हमरा एहतसाब अदालत पहुंचे, जहां अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की जानिब से नैब अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किए जाने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। गुज़श्ता समात पर अदालत ने वकला के दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था कि नैब कवानीन में तरामीम के बाद नैब रेफरेंस नहीं बनता। कैमरामैन इमरान AK के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। इंटरबैंक में उतार चढ़ाव के बाद डॉलर 1 पैसे कमी के बाद 294 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर 301 रुपये का हो गया। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कम होकर 294 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से 4 कारोबारी रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 43 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये कमी से 301 रुपये का हो गया। यूरो 327 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 384 रुपये पर बरकरार रहा, जबकि ओपन मार्केट में अमाराती दरहम 20 पैसे इजाफे से 83 रुपये 70 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 80 रुपये 70 पैसे पर पहुँच गया। एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़खायर 4 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 13 अरब 38 करोड़ डॉलर्स के करीब पहुंच गए। स्टेट बैंक की हफ्तावार ज़खायर की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। 11 अगस्त तक स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 4 करोड़ डॉलर से बढ़कर 8 अरब 5 करोड़ डॉलर्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 2 करोड़ 80 लाख डॉलर्स इजाफे से 5 अरब 32 लाख डॉलर्स हो गए, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर 4 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 13 अरब 38 करोड़ डॉलर्स के करीब पहुँच गए। इस्लामाबाद के बाद मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर से ई-पासपोर्ट के इजरा का आगाज़ कर दिया गया। ई-पासपोर्ट इजरा के लिए फ़ीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। 5 साला ई-पासपोर्ट के लिए 36 सफ़ात की नॉर्मल फ़ीस 9,000 रुपये होगी। 36 सफ़ात अर्जेंट ई-पासपोर्ट की फ़ीस
15,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। शेड्यूल के तहत 72 सफ़ात ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फ़ीस 16,500 और अर्जेंट की 27,000 मुकर्रर की गई। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साला पासपोर्ट के लिए फ़ीस 13,500 रुपये मुकर्रर की गई। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साला पासपोर्ट की अर्जेंट फ़ीस 22,500 रुपये हो गई। 72 सफ़ात की 10 साला पासपोर्ट की नॉर्मल फ़ीस 24,750 और अर्जेंट 40,500 रुपये हो गई। ताजिर बरादरी ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। सदर स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन कल बोल्टन मार्केट के सामने एहतजाज करेगी। महमूद हामिद कहते हैं महंगाई के बायस ताजरों का दिवालिया हो चुका। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली पेट्रोल के बढ़ते दाम, ताजिर मज़ाहमत के लिए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली के भारी भरकम बिलों ने ताजिरों का पारा हाई कर दिया। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन महमूद हामिद का कहना है कि 200 यूनिट पर 12,000 रुपए का बिल आ रहा है। महंगाई की वजह से तिजारत खत्म, ताजिरों का दिवालिया हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने जालिमाना इजाफा किया है और जिस तरह के इलेक्ट्रिक लोगों के घरों में बिल भेज रही है और जो 200 यूनिट के ऊपर 8,000 और 12,000 का बिल आ रहा है, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इस महंगाई की वजह से और इस यानी पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है, हमारी तिजारत ख़त्म होती जा रही है। ताजिर रहनुमा इंटरनेशनल मार्केट रबन बोले, दुकानदारों की आमदनी कम हो गई। अगर मजदूरों को फारिग करना शुरू किया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दुकानदारों की आमदनी कम हो गई है, परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। जब परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई तो सेलमैनों को छुट्टी दी जा रही है। ज़ाहिर दुकानदार को मुनाफा नहीं है। जब दुकानदार को मुनाफा नहीं हो रहा था वो अपने सेलमैनों को छुट्टी देगा। जब वो अपने सेलमैनों को वो छुट्टी देगा तो वो सेलमैन जब बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, क्राइम बढ़ेंगे। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बिजली और पेट्रोल की कीमत में कमी तक तहरीक मरहलावार जारी रखने का फैसला किया है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि जामिया कराची में इंट्रावर्सिटी विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के टाइटल का मुकाबला स्पोर्ट्स सोसाइटी और आर्ट्स डिपार्टमेंट के दरमियान हुआ। आर्ट्स डिपार्टमेंट ने 44 रन का हदफ दिया जो स्पोर्ट्स सोसाइटी हासिल न कर सकी। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। जामिया कराची में इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल का मुकाबला स्पोर्ट्स सोसाइटी और आर्ट्स डिपार्टमेंट की लड़कियों के दरमियान खेला गया। आर्ट्स डिपार्टमेंट की खिलाड़ियों ने पहले बैटिंग करके 4 ओवर में 48 रन का हदफ दिया। स्पोर्ट्स सोसाइटी की खिलाड़ी हदफ हासिल न कर सकी और टूर्नामेंट का टाइटल हार गयी। जीतने और हारने वाली टीमों की कप्तान का कहना था कि स्पोर्ट्स सोसाइटी ने टूर्नामेंट में लड़कियों को मौका देकर अच्छा इकदाम उठाया। एक तरह से इवेंट तो बेहतरीन रहा है, लड़कियों ने भी खूब सारा एंजॉय किया है, हर तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिली है। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इस तरह से मजीद होने चाहिए ताकि लड़कियाँ स्टडीज़ के साथ साथ ये गेम्स वगैरह भी कंटिन्यू कर सकें। इस तरह के टूर्नामेंट्स लाजमी तौर पे होते रहने चाहिए। ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस तरह के मौके बहुत मिलने चाहिए ताकि वो खेलों के मैदान में भी आगे आ सकें और पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी अच्छी तरह से इन मैदान में भी आगे हो सकें। स्पोर्ट्स सोसाइटी के खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स हर साल मुनक्किद होने चाहिए। हम लोगों ने ये क्रिकेट का इवेंट करवाया था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा। हमने ना सिर्फ टीम रजिस्ट्रेशंस की थी बल्कि इंडिविजुअल भी की थी क्योंकि ये एक फ्रेंडली मैच था। तो हम सबको वेलकम करना चाहते थे, जो भी खेलना चाहते हैं आके हमारे साथ खेले, इंजॉय करे और अपनी कैंपस लाइफ को अच्छा करे। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती चलूँ कि हमारे साथ जिन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर आसिम और इन सब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। इसकी वजह से हमने बहुत सक्सेसफुली इस इवेंट को लेकर चले और अच्छे से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। फाइनल के अख्ताम पर टाइटल जीतने वाली और रनर अप टीम को तारीफी असनाद दी गई। जामिया एनईडी में दाखिला टेस्ट की तैयारी के लिए जमात इस्लामी कराची के मरकज़ इदारा नूर हक में तलबा के लिए रस्मी टेस्ट का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें हिस्सा लेने के बाद तलबा के लिए दाखिला टेस्ट में आसानी हो सकेगी। ताहा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में तालीमी फ़रोग में जमात इस्लामी का अहम कदम। इस्लामी जमियत तलबा के इश्तराक से इदारा नूर हक में एनईडी दाखिला टेस्ट की तैयारियों के हवाले से टेस्ट का इनेकाद किया गया। इस्लामी जमियत तलबा ने कराची वालों के लिए जामिया एनईडी का टेस्ट आसान बनाने का बेड़ा उठा लिया। इदारा नूर हक में दाखिला टेस्ट की तैयारी के लिए रस्मी टेस्ट का एहतमाम किया गया, जहाँ प्रैक्टिस करके तलबा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी कराची के नाइब अमीर उसामा रजी का कहना था कि तलबा के लिए डिजिटल लैब के जरिए तैयारी के बाद दाखिला टेस्ट आसान हो जाएगा। तो ये इदारा नूर हक में ये कंप्यूटर लैब है, तो हम बराह रास्त कंप्यूटर पे ये टेस्ट जो है ये कराची के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनको ट्रेन कर रहे हैं
اور ادارہ نور حق میں یہ کام ہو رہا ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ اس کو مینیج کر رہی ہے. بنو قابل کی یہ لیبس استعمال ہو رہی ہیں اور ابھی ہم نے یہاں پر بات کی ہے تمام اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہے کہ اب وہ بہت اچھی طرح پریپیئر ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوالیفائی کریں گے اور ہم ان کے حق میں دعا گو بھی ہیں. جمعیت کے ناظم کا کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹ شہر بھر میں قائم مختلف مقامات پر کرائے جا رہے ہیں جن میں ہزاروں طلبہ حصہ لے رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مختلف مقامات ہیں جیسے بنو قابل کے سینٹرز ہیں اور اسی طریقے کی ڈفرینٹ لیبس وغیرہ ہم نے کری ہوئی ہیں اور وہاں پر ان اس ٹیسٹ کو ارینج کر رہے ہیں. اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ پر شفٹس کے حساب سے ہمارے پاس 60-70 ہوتے ہیں تو لیکن یہ نمبر آف شفٹس ہمارے پاس پر ڈے کے حساب سے 3-4 اس طریقے سے یہ پورا ویک ایک ہمارا ٹیسٹ کا چلتا آ رہا ہے. تو اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ اراؤنڈ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. طلبہ تنظیم کی جانب سے داخلہ ٹیسٹ کی تیاری میں مدد کروانا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ طلبہ تنظیمیں جماعت میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ بھی طلبہ کی خدمت میں پیش رہتی ہیں. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ طہا ملک, سٹی 21. کراچی کی سنت آرٹ گیلری میں لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے مصوروں کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش نبض کے نام سے سجائے گئے. گروپ شو میں 30 فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے. کینوس پر رنگوں کے ذریعے معاشرتی رویوں کی عکاسی کی گئی. راہیل بیگ مزید بتائیں گے. راہیل بتائیے گا. جس وقت ہم موجود ہیں صنعت آرٹ گیلری میں جہاں پر نبض کے نام سے خوبصورت رنگا رنگ شاہکار فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو چکا ہے اور اس نمائش میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 نئے ابھرتے ہوئے مصور ہیں جن کے فن پارے یہاں نمائش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مصورہ ہیں شہرزاد صاحبہ. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی اسی طرح سے جو ینگ ٹیلنٹ ہے جو نئے مصور ہیں اس فن میں آنے والے ان کا اس کام کو کس طرح سے دیکھیں؟ اس فن میں کام کرنے کے لیے جو آپ ہمارے جو ینگ آرٹسٹس ہیں جو کہ ابھی فریشلی گریجویٹ ہو رہے ہیں اور وہ بھی نہیں لیکن جو ینگ آرٹسٹ چاہ رہے ہیں کہ وہ آرٹ پڑھیں اور آرٹ اسکول جانا چاہیں اور وہاں سے گریجویٹ کرنا چاہیں, اب یہ پاسبلٹی بن گئی ہے پاکستان میں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جس بندے کا دل ہے, جس بندے کا ٹیلنٹ ہے وہ اس ٹیلنٹ کو پالش کرے, وہ اس ٹیلنٹ کو ہون کرے. یہاں پہ بہت ساری اس طرح کی کمال آرٹ یونیورسٹیز کھل گئی ہیں, صرف کراچی اور لاہور میں نہیں لیکن جام شوروں کو بھی دیکھیں آپ, پنجاب میں بھی ویریس ایریاز کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں ینگ آرٹسٹ کے لیے. ینگ آرٹسٹوں کا جو کام ہے آج شوکیس کیا گیا ہے, اس کام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ خود آپ ایک آرٹسٹ ہیں, ٹیچر بھی ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ پڑھاتی ہیں, آج اس نئی سوچ کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ اگر اس نمائش میں بھی آپ پورا کلیکٹیو شو ملا کر اگر دیکھیں تو نبض کا مطلب ہے جو آپ کا پلس ہوتا ہے یا جو ایسنس ہوتا ہے زندگی کا, جو اس وقت فلیور ہے اور جو ایسنس ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں, یہ اس شو کو دیکھ کے ظاہر ہو جاتا ہے. بیکاز یہ جو آرٹسٹس ہیں یہ ڈفرینٹ پریکٹسز, ڈفرینٹ اسٹوڈیوز اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے سارے گریجویٹ ہوئے ہیں. کچھ ہیں جو کہ بہت ہی ٹرینڈ آرٹسٹس ہیں, کچھ ہیں جو کہ سیلف ٹرینڈ ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی فارمل آرٹ ایجوکیشن میں حصہ نہیں لیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب کا کام مختلف ہے, سب کا کام, ہر ایک بندے کی آئیڈیالوجی اور ہر ایک بندے کا کانسیپٹ جو ہے کام کا, جو سوچ ہے اس کام کے پیچھے, وہ بہت یونیک, انڈیویجول, اوریجنل قسم کا کام ہے. جی, اور یہاں پر جو پینٹنگز لگائی گئی ہیں مختلف میڈیم اور مختلف شاہکار نظر آتے ہیں اور صنعت آرٹ گیلری میں شروع ہونے والی یہ نمائش 25 اگست تک جاری رہے گی. جی, ٹیلی نار پاکستان کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کے ادراک اور اقدامات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. کمپنی کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پائیدار کوششوں میں پیش رفت اور اجتماعی اقدامات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. ایس و سسٹینیبلٹی کی سربراہ ٹونی ایلزیبٹ آسٹویٹ نے کہا کہ کاروباری اداروں کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. اس نے سب سے فوری اقدام قابل تجدید توانائی کی طرف منتقلی ہے. have been focusing on how we can contribute to environmental protection and reduce climate emissions. So we're having a panelist debate on this, how we can work together across different sectors to address climate change and how we can prevent and work on this together. سفائر گروپ لیکن تھنگز اور ایس محبوب اینڈ کمپنی کے نمائندوں نے موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کے متاثر ہونے کے تناظر میں ہنگامی اقدامات کی ضروریات پر زور دیا. Huge opportunities on the building side, on the industry side to start looking at where we are wasting.
when we have previously also worked with data centers. We don't have the necessary infrastructure to cope with extreme weather-related events. So we're vulnerable across all these dimensions. Energy during their useful life. And how do you do that? I think a few years ago we had designed CEO रियोन एनर्जी सफायर ग्रुप मुश्तबा हैदर बोले, लोग सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं, ये सस्ता तवानाई का जरिया बनता जा रहा है। Solar and wind power, and that's less than 5%. Pakistan has an ambition under the Paris Agreement to get to 30%, like a lot of other countries. 30% of the power has to come from renewable sources other than डायलॉग सेशन में मौसमियाती तब्दीली से मुकाबले के लिए फौरी इकदामात उठाने की अहमियत को उजागर किया गया। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।